Hare Krishna Prabhuji, Dhanpranam, Shri Prabhupada. Hare Krishna Prabhuji, Dhanpranam. We'll just give a minute for devotees to join. Yes, Prabhuji. So Hare Krishna everyone, thank you for joining today's Wednesday Sangha program. With us we have His Grace Shyam Gopal Prabhuji. Thank you so much Prabhuji for joining us. And I'll just give a brief introduction of His Grace Shyam Gopal Prabhuji. He has been serving as Vice President in ISKCON Noida. He has been serving selflessly and tirelessly in ISKCON Noida since 2010. And he was initiated as a monk in 2012 by His Holiness Loknath Swami Maharaj. He is currently leading many projects like the distribution of spiritual books and spiritual paraphernalia. He is leading the Food for Life program for General Mass. During COVID, he was instrumental in reaching 1 lakh people in the NCR region when it came to serving food, which is prasadam. And he has been inspiring many youths in their life to take up the spark of spirituality. And thousands of youth have been inspired by him. He serves as a counselor, coach, educator for the society. His core competence is spirituality. He's been born and brought up in Bihar, and he pursued his higher studies in MIT, Manipal, to become a software engineer. And he's inspired to serve the human society in the field of education and help people to lead a life of fulfillment and purpose. So thank you so much, Prabhuji, for joining us. And over to you. Thank you, Prabhuji. Can I share? I wish to sing Sure. a song, Vaishnav song. I Sure. wanted to share also. Okay, are you able to share now, Prabhuji? Can you try? Yes. Yes, I am able to. हरे कृष्णा एक घंटे का समय है प्रभु जी Yes, Prabhuji. So 45 minutes for this for the talk, and then we can have like 15-20 minutes for questions. So okay, and I like to sing Vaishnav song and like to explain from there. Sure, Prabhuji. Yes. Okay. So devotees can follow how it goes. I sing, devotees they sing. So they can sing on mute, Prabhuji. Otherwise, there'll be echo Okay. and there. Yes. हरे कृष्ण सभी भक्तों का धन्यवाद और वेलकम टू दिस संघ वेडनेसडे संघ and thanks for inviting me. I have some acquaintance with His Grace Ramchandra Prabhu. He is down with COVID, he is telling, but he has offered me this service, and I'm thankful to him and all the devotees. So we'll start with this Vaishnav song, O Hey Vaishnav Thakur. It's a quite famous song. We'll try to sing it, and then we'll talk a little bit on the topic Kartik Khatam, Bhakti Khatam. O Hey Vaishnav Thakur, Dayar Sagar, Eda Se Karuna Pari. Dayar Sagar,
एतास्ते करी दिया पदछाया शुद्ध हे रामाया तुम्हार चरण धरी दिया पदछाया शुद्ध हे रामाया तुम्हार चरण धरी क्षय वेगद्रमी क्षय दोष शोधि क्षय गुण देहदासे क्षय वेगद्रमी क्षय दोष शोधि क्षय गुण देहदासे क्षय का संग देह हरे हमारे मोसे श्री संगेर आश्रे क्षय संग देह हरे हमारे मोसे श्री संगेर आश्रे एकाकी आमार नाही पाय बल हरि नाम संकीर्तने एकाकी आमार नाही पाय बल हरि नाम संकीर्तने तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम दाने तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम दाने कृष्ण से तो मार कृष्ण बीते पार तुम्हार शक्ति आजे कृष्ण से तो मार कृष्ण बीते पार तुम्हार शक्ति आजे आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बली भाई कव पाछे पाछे आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बली धारी कव पाछे पाछे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद गोविंद राधे जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा
गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है, थैंक यू इस सॉन्ग में पार्टिसिपेट करने के लिए। और आज का जो विषय है कार्तिक, कार्तिक की महिमा। कार्तिक में हम सभी ने बहुत अच्छे से भक्ति किया, कार्तिक का व्रत किया, ऊर्जा व्रत। कार्तिक में सुबह स्नान कर लेना और रोज दीप दान करना डेली। तो ये इस तरह से ये व्रत किया जाता है। और वृंदावन में आके रहना, वहाँ पे भक्तों की संगति करना, और वहाँ पे यमुना जी में स्नान करना, या प्रातः प्रातः हर दिन सुबह सुबह स्नान करना। और कार्तिक का ये स्नान कहा जाता है कि सारे तीर्थों में स्नान करने से ज्यादा पुण्य देने वाला है, ज्यादा शक्ति देने वाला है। फिर ऐसे वातावरण में हम आ जाते हैं जहाँ सभी भक्त इस प्रकार का लाभ उठाने के लिए पहुंच जाते हैं। और ये उस समय का अवसर होता है, हम प्रतिदिन दामोदर अष्टकम गाते हैं, भगवान श्री कृष्ण दामोदर भगवान की आरती करते हैं। इससे हमारी भक्ति में बहुत वृद्धि होती है। और क्या होता है, हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हम हमारे पास कुछ पाप की राशि है, कुछ पाप हमारे पास है। तो हम जिस संसार में आए हैं, इसको क्या कहा जाता है, ये भौतिक जगत है जहाँ पे हम रह रहे हैं। हमने एक भौतिक शरीर प्राप्त किया है, और भौतिक शरीर को प्राप्त करने के कारण ये, क्योंकि टेम्पररी सिचुएशन है, क्योंकि ये अस्थाई है, इसलिए इससे हमें दुख मिलता है, असत। ये हम तो सत हैं, हम शाश्वत हैं, आत्मा हैं, लेकिन क्योंकि हमने भौतिक शरीर धारण किया और ये भौतिक शरीर चले जाने वाला है, तो भौतिक शरीर के रहने के कारण, भौतिक परिवेश में रहने के कारण, और तीन गुणों से हम ढके हुए हैं, इसके कारण से हमारा जो नॉलेज है अपने बारे में और भगवान के बारे में, ये दोनों कवर हो गए। और इस जगत के बारे में भी जो नॉलेज है वो भी कवर हो जाता है अविद्या के कारण। और हम क्योंकि भौतिक प्रकृति के संपर्क में आ जाते हैं, तो अनेक प्रकार के उसके दुष्प्रभाव हो जाते हैं, रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में हम आ जाते हैं, सतगुण, ये तीन प्रकार के गुणों को बताया गया है। तो रजोगुण और तमोगुण से फिर सारा हमारा ज्ञान ढक जाता है, ये समस्या हो जाती है। और हम कर्म करने के लिए यहाँ बाध्य हो जाते हैं, हम काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, भोग की हमें यहाँ अभिलाषा रहती है, हम भोग करना चाहते हैं, इस जगत में इसके लिए आ गए। और हम सोचते हैं कि काम करके और भोग करना यही जीवन का उद्देश्य है, ऐसा हमारा अंदर भर गया है। अब जब हम परेशान हो जाते हैं तो हम थोड़ी भक्ति करने लगते हैं। कितने बार परेशान होकर हम आ जाते हैं, भगवान ने भगवत गीता में कहा है, चार प्रकार के लोग भक्ति में आ जाते हैं। या तो उन्हें कुछ चाहिए, आर्त अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु, ये चार प्रकार के लोग भक्ति में आ जाते हैं। तो किसी न किसी कैटेगरी में हम भी रहे होंगे या हैं, या तो हम दुखी हैं संसार से, ये ये जो स्थिति है हमेशा बदलते रहती है, तो उससे हमें परेशानी होती है। और हम भी अपनी स्थिति को पूरी तरह से अच्छी तरह से नहीं जानते, तो हम भी किस स्थिति में रहे हमें भी समस्या होती हो। आर्थ हो गया, एक अर्थार्थी हो गया, हमें कुछ चाहिए, हमें इस जगत में कुछ चाहिए, अर्थ कुछ हमें चाहिए। तो हम भगवान के पास आ जाते हैं कि हमें कुछ चाहिए। और भगवान भगवत गीता में बताया उन्होंने
इस सिर्फ अपने काम करने से हमें जो चाहे वो हम प्राप्त नहीं कर पाते। फल तो भगवान के हाथ में होता है। तो कितने बार हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, इस बातों को, और भगवान के पास आ जाते हैं कि कुछ चाहिए हमें, हमें खुशी नहीं प्राप्त हो रही है। उद्देश्य तो है प्रसन्नता, आनंद प्राप्त करना। हम सभी का उद्देश्य तो ये है, आनंद हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो वो हम सोच रहे हैं कि भोग करके हम शायद आनंद प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन टेम्पररी है, भोग कर पाने की लिमिटेशन भी है, और हम भी लिमिटेड वे में ही भोग को प्राप्त कर सकते हैं, अनलिमिटेड है नहीं। उसमें भी समस्या है हमारे पास। हम उस क्वालिटी के हैं जो कि शाश्वत है, हम उस चीज को चाहते हैं जो कि अनलिमिटेड है, जो हमेशा रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। हम लगातार आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी हुई है हमारे चारों ओर कि हम हर चीज थोड़े समय के लिए, हर चीज की व्यवस्था अस्थाई टाइप की है। हम स्वयं एक अस्थाई शरीर में रह रहे हैं, और हम हैं शाश्वत। तो ये मिसमैच हो रहा है। तो हम चार प्रकार के लोगों में हम कहीं ना कहीं हो जाते हैं। आर्थ हो गए, अर्थार्थी हो गए, जिज्ञासु और ज्ञानी। अगर हमें कुछ नॉलेज है कि हम आत्मा है, तो भी हम और आगे का ज्ञान हमें प्राप्त करना है, नॉलेज को प्राप्त करना है, तब हमको शांति प्राप्त होगी। नॉलेज अगर सही नहीं है तो हम ट्राई करेंगे, फेल होते रहेंगे। और जिज्ञासु हो सकता है ये संसार क्या है हम समझना चाहते हैं, तो भी भगवान के पास आ जाते हैं। तो ये चार प्रकार से एंट्रेंस हो जाता है भक्ति के, भक्ति लाइफ में। लेकिन भक्ति लाइफ ही हमारा लाइफ बन गया है, इसके लिए हम अभी शायद कितने कन्विंस हैं, वो हमें होना है। तो जब ऐसे अवसर आते हैं, कार्तिक होता है, तो ऐसे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं भक्ति करने में, जो इंटरेस्ट रखते हैं, और बहुत उसमें एनर्जी सरचार्ज रहती है। अवसर, विशेष अवसर प्राप्त होता है। और ऐसे विशेष समय, त्योहार, उत्सव भगवान ने बनाए हैं, उसमें विशेष भगवान की कृपा भी होती है। उसमें विशेष करके ऐसे लोग जो स्पिरिचुअली सरचार्ज होते हैं, उसका और लाभ उठाने के लिए, या तो लाभ देने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। जैसे कि श्रील प्रभुपाद कुंभ के मेले के समय में कुंभ में पहुंचे थे, और प्रतिदिन वहां पे भक्तों को लेकर पहुंचे थे। कुंभ में हम देखते हैं कि ऐसे तो अलग अलग जगह लोग भक्ति करते हैं या तपस्या करते हैं, अपने आध्यात्मिक चीजों में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब कुंभ होता है, ऐसा विशेष अवसर होता है, तो सभी वहां उसमें स्नान करने के लिए पहुंच जाते हैं। करोड़ों की संख्या में लोग पहुंच जाते हैं। और जब गौर पूर्णिमा या महीने भर गौर पूर्णिमा उत्सव होता है, तो पूरे विश्व भर के लोग मायापुर पहुंचते हैं, क्योंकि भगवान श्री गौरांग महाप्रभु का जन्मोत्सव होने वाला है, और पूरे महीने भर उत्सव मनाया जाता है। और सभी बड़े बड़े भक्त, शुद्ध भक्त मायापुर की पवित्र भूमि में, आध्यात्मिक धाम में, उसमें गोते लगाने के लिए हम पहुंच जाते हैं कि हमें कुछ वहाँ लाभ प्राप्त हो। तो थोड़ा सा हमें वहाँ पे कुछ टच, कुछ हमें आध्यात्मिक एनर्जी का टच मिलता है। विशेष अवसर है, बाकी समय भी अवसर है। भगवान का दिव्य नाम अगर हमारे साथ है, तो हम उसको डेली जप करते हैं, या फिर हम मंदिर जाते हैं, सप्ताह में एक बार हम इकट्ठे हो जाते हैं, संग लेते हैं भक्तों का, संगति लेना चाहते हैं। संगति में होता क्या है? आदान प्रदान होता है। क्या चीज का? क्या चीज का आदान प्रदान होता है? भगवान के बारे में चर्चा होती है, भगवान का आदान प्रदान होता है, प्रसाद लेते हैं हम एक दूसरे के साथ मिलके, और आदान प्रदान होता है। या फिर हम मिलते हैं, भगवान के बारे में बातें करते हैं, शेयरिंग करते हैं हम। और शुद्ध भक्तों के माध्यम से प्रभुपाद जी ने जो पुस्तकें दी हैं, शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद जी, उन्होंने बड़े ही मेहनत करके सभी जीवात्माओं के लिए बड़ा आंदोलन खड़ा किया है। इसलिए कि शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त हो। और भक्त भक्त उस संगति में भक्ति, भक्ति प्राप्त हो, हमें हमें कुछ श्रद्धा प्राप्त हो, हम कुछ भक्ति के कार्य को और गहराई से लेने के लिए कुछ हमें अवसर प्राप्त हो। क्योंकि कर्म करते करते हर व्यक्ति निराश हो जाता है। कर्म करते हैं हम, लेकिन फल हमें जो अपेक्षा रहता है वैसा कभी मिलता नहीं। कर्म कर्म में आनंद नहीं होता, थक जाते हैं हम। लेकिन भक्ति करते हैं तो हमें आनंद आता है, हमारा उत्साह वर्धन होता है, हमारी एनर्जी बढ़ती है। कर्म करते तो हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है। जो भी हमने कमाया,
मतलब आत्मा के स्तर पे हम थे या हैं। और हमारी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, जब हम काम में लग जाते हैं तो वो सारा खत्म हो जाता है। सब खींचा चला जाता है। और फिर से हम जब भक्ति में आते हैं तो हमारा रस वर्धन होता है, हमें कुछ रस प्राप्त होता है, हमारे हमें कुछ पुष्टि, संतुष्टि प्राप्त होती है, पुष्टि होती है हमारी। हम हमारा आत्मा फिर से जागृत होने लगता है भक्तों के संग में। तो निश्चित ही भक्तों की संगति सब जगह पूरे शास्त्रों में इस बातों को बताया गया है कि एकमात्र कोई अगर लक्ष्य है, मतलब कि अगर प्राप्त करना है कुछ, तो वो है भक्तों की संगति। और कोई शुद्ध हो भी जाता है पूरी तरह से, अशुद्ध अवस्था में भी यही इसी से सब कुछ प्राप्त होता है, संगति से। लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए। और शुद्ध अवस्था में भी भक्त यही चाहते हैं कि किसी तरह से भक्तों की संगति प्राप्त हो जाए। क्या होता है ऐसा भक्तों की संगति में? भक्तों की संगति में भगवान ट्रांसफर होते हैं। भगवान के प्रति जो श्रद्धा है वो ट्रांसफर होती है हृदय से, एक के हृदय से दूसरे के हृदय में ट्रांसफर होता है। और उससे भगवान जब मिलते हैं तो पोषण होता है हमारा, हमें शेल्टर महसूस होता है, हमें शांति को प्राप्त होते हैं, आनंद को प्राप्त करते हैं हम। अपने आप में लगता है कि जीवन की अब हमारी परिणति या उस जीवन की पूर्णता को प्राप्त हम कर पा रहे हैं। वो संबंध जिस जो मिसिंग था उसको हम प्राप्त कर रहे हैं। बाकी समय में हम क्या करते हैं? बाकी समय में भी भगवान से ही एक्सचेंज चल रहा है, लेकिन क्योंकि हमारा ज्ञान ढक गया है तो माया हमारे ऊपर कवर कर लेती है। और हम ऐसे तो सब कुछ में भगवान है, सब जगह भगवान है, भगवान ने ही सारी वस्तुओं को दिए हैं। और सभी व्यक्ति भी भगवान से ही आए हैं, सभी भगवान के अंश हैं। लेकिन जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो हमारा माया के द्वारा जो कवर हो जाता है नॉलेज, तो हम भौतिक तरीके से इंटरेक्ट करते हैं हर जगह, हर वस्तु से, हर व्यक्ति से। अब हम कितने स्पिरिचुअली चार्ज हैं उसके हिसाब से भी है। लेकिन अगर चार्ज उतने नहीं है तो माया टेक ओवर कर लेती है। स्पिरिचुअल एनर्जी के बदले हम मेटेरियल एनर्जी में रहते हैं। और वो हमारे को गाइड करती है, अंदर से थॉट्स आते हैं हमारे को, फीलिंग्स आते हैं, वैसे मोटिवेशन आता है। और हम उसी तरह से इंटरेक्ट करते हैं। और उससे क्या होता है, जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो भगवान उस पिक्चर से निकल जाते हैं। और क्या होता है, और हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है। मटेरियल एनर्जी से हम इंटरेक्ट करते हैं, हम कवर हो जाते हैं, हम थकने लगते हैं, हमारी एनर्जी खत्म होने लगती है, हमें उत्साह कम होने लगता है, शक्ति खत्म होने लगती है। और कितने बार नेगेटिव में भी और हम चले जाते हैं, दूसरों को भी नेगेटिव कर देते हैं, क्योंकि हम भगवान को उसमें इंटरेक्शन में भूल गए भगवान को। ये इसी प्रकार से जैसे कि दो बच्चे रहते हैं, अगर माता पिता को भूल जाएं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो लड़ाई हो जाती है उनसे, क्लैशेज हो जाते हैं, खींचतान हो जाती है, रिसोर्सेज के लिए लेन देन में खराबी हो जाती है, लेन देन में मजा नहीं आता। लेकिन वही बच्चे, माता पिता के द्वारा सब कुछ सप्लाई किया जाता है, तो वो बच्चे आपस में लेन देन करते हैं, खेलते हैं और आनंद को प्राप्त करते हैं, एक दूसरे के साथ आनंद प्राप्त करते हैं, वस्तुओं के साथ आनंद प्राप्त करते हैं। माता पिता को अगर भूलते नहीं, माता पिता अगर सेंटर में रहते तो। हम्म। तो अगर इस एनालॉजी से हम समझना चाहें, इसी तरह से हम जो कुछ भी है सब भगवान का ही है, भगवान का दिया हुआ। भगवान चाहते हैं कि हम आनंद को प्राप्त करें, उनसे इंटरेक्ट करें, वो उन्होंने जो संसाधन दिए हैं उनसे इंटरेक्ट करें, उनकी सेवा करें और आनंद को प्राप्त करें। लेकिन क्योंकि हम भौतिक भोग में काफी आसक्त हैं, हमारा थोड़ा कॉन्सेप्शन खराब हो गया है भगवान के प्रति, भगवान के धाम, भक्तों के प्रति, और भगवान के द्वारा दिए गए सारे संसाधन, मैटर, मैटर के प्रति भी। हम अपने आप को भी मैटर समझते हैं कितने बार, वी आर दिस बॉडी, मैं ये शरीर हूँ, ऐसा समझते हैं। इस प्रकार से जब हम इंटरेक्ट करते हैं इन सब का, तो हम एक्सप्लॉइटेशन करने लग जाते हैं, सर्व करने के बदले एक्सप्लॉइट। टेंडेंसी टू एंजॉय इतना स्ट्रांग है, लॉर्डिंग ओवर मटेरियल नेचर, कंट्रोल, ये सब करने से हम स्वयं परेशान होते हैं। और हमारे सारे जो आनंद है वो खराब हो जाता है। तो भक्तों की संगति में आके हमें कुछ सीखना होता है कि हमारे को, हम इस भौतिक संसार में आ गए हैं, कुछ हम इस संसार में आके फंस से गए हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स है, हमें हमें वो प्रॉब्लम्स रिकॉग्नाइज करने हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, हमारे प्रॉब्लम बन गए हैं। और क्या है असली में प्रॉब्लम? तो
इस सॉन्ग में के माध्यम से मैं थोड़ा चर्चा करना चाह रहा था। 6 वेग हैं हमारे अंदर। उपदेशामृत में ये 6 वेगों का वर्णन किया गया है। 6 दोष हैं कि हम कुछ करते हैं तो कुछ उसमें गड़बड़ी कर देते हैं। मतलब कुछ ना कुछ हम दोष कर लेते हैं, जिसके कारण हमारी भक्ति, हमारे भगवान के प्रति श्रद्धा जो है वो कम जाती है। और हम हमें 6 गुणों की आशा करते हैं, हम कि किसी से हमें ये 6 गुण प्राप्त हों, कि किस प्रकार से भक्ति की वृद्धि हो और हम भगवान के प्रति जो श्रद्धा है, जिस प्रकार से भगवान ने बनाया है उसको उसी प्रकार से देख पाए और उस प्रकार से इंटरेक्ट कर पाए, हर चीजों को यूज कर पाए उस एंगल से, उस तरीके से। हम खुद हम खुद भी स्पिरिचुअली सर्चार्ज हो जाए, उस तरह के गुण को विकसित करें। कौन से वो गुण हैं, हम थोड़ी देर में देखेंगे। और 6 सत्संग, असल में ये जो पूरा मूवमेंट है, ये बनाया गया है इसीलिए कि हम संकीर्तन कर पाए, संकीर्तन में हम भाग लें और संकीर्तन में आनंद लें। स्पिरिचुअल वर्ल्ड का ये एटमोसफेयर है, संकीर्तन, मिल के साथ में आके भगवान का नाम लेना, कीर्तन करना, भगवान का गुणगान करना, भगवान की सेवा करना मिल के। अकेले भगवान की सेवा कर पाना संभव नहीं होगा। अकेले मैं और भगवान, भगवान अकेले नहीं। समस्या ये है कि मैंने भगवान को प्राप्त कर लिया और कोई नहीं है उनके साथ, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान मतलब भगवान, और भगवान के भक्त, भगवान के धाम, सब कुछ भगवान का पैरा फड़ने लिए सब कुछ उसके अंदर है। भगवान अकेले नहीं रहते। और हम भी अ, अकेले भगवान की क्या सेवा करेंगे। कुछ समय के लिए हम सेवा करते हैं, लेकिन हम जो सेवा करने की विधि है वो तो भगवान के द्वारा ही दी गई है, गुरु के माध्यम से वो आता है। अगर वो गुरु के माध्यम से हमने प्राप्त नहीं किया है तो वो फल नहीं देगा, भगवान के प्रति वो भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती हमारे हमारे पास। साधुओं के माध्यम से, शास्त्र, साधु, गुरु, इन्हीं के माध्यम से ही आगे बढ़ा जा सकता है। भगवान को ऐसे नहीं, हम भक्ति अकेले नहीं हो पाती, अकेले नहीं हो सकती। भक्ति मतलब भगवान के भक्तों के साथ ही होती है वो। और भक्ति की शक्ति देती है श्रीमती राधा रानी। भक्ति के जो डिवोशन है हमारे हार्ट में, कुछ इमोशंस है भगवान के प्रति, उसको उसको सरचार्ज करती है श्रीमती राधा रानी। उन्हीं के माध्यम से भक्ति प्राप्त होती है। तो अकेले नहीं है भगवान। भक्ति, भगवान की शक्तियां उनके साथ हैं, भगवान के भक्त उनके साथ है, और हमें उस वहां पे आनंद है। आनंद उनके बिना नहीं है। इसमें हमें कन्विंस होना है कि आनंद भगवान के बिना हो नहीं पाएगा, और भगवान के भक्तों के बिना भी नहीं हो। ये शास्त्रों में अनेक जगह भगवान के भक्त ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, भगवान की भक्ति चाहिए। हमें और कुछ नहीं चाहिए, भक्तों का संग चाहिए। भक्तों के संग में भक्ति मिलती है, भगवान मिलते हैं भक्तों के संग में। और वो प्रोसेस दिया जाता है जिससे भगवान से कनेक्ट कर पाए। तो क्या है ये 6 वेग जो हमारे लिए अड़चन बने हुए हैं, मतलब हमारी को समस्या है, ये रहेंगे तो हम उस तरह से भगवान को एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये उपदेशामृत में रूप गोस्वामी बताते हैं कि वाचो वेगम, ये सब हमें कंट्रोल करना है। और उसकी विधि भी उपदेशामृत में बताई गई। फिजिकल तरीके से हम सिर्फ अपने वचन को कंट्रोल कर लें तो उसकी तपस्या भी बताई गई है भगवत गीता में। ऐसा बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, और इसकी विधि बताई गई, तपस्या बताई गई। शास्त्र उचित बोलना चाहिए, सुखकर हो, प्रिय हो, और सबका हितकारी हो, ऐसा ये सब बातें बताई गई। किसी को उद्वेग उत्पन्न ना करने वाला हो, ऐसे वचन बोलने के लिए ऐसी वाणियों को बोलना। कितना बोलना है या चुप रहना है, तो बैलेंस चाहिए। ये बैलेंस पे पहुंचना है। युक्त वैराग्य को कहा गया है। ना ही बोलना बंद कर देना है, ना ही बोलते ही जाना है। जितना जरूरी है जिस परिस्थिति में, जो अवस्था में, उतना बोलना है। तो भगवान को भी बोलना है, भगवान से भी कम्युनिकेट करना है। तो ये बोलने की शक्ति हमें दी है। इसका दुरुपयोग हो जाता है तो हम फंस जाते हैं संसार में। हाँ, तो उपदेशामृत में और डिटेल में चर्चा किया गया। आप उसको वहां से और समझने का, या समझते हैं तो और गहराई में समझने का, उस पर विचार मंथन कर सकते हैं, मनन चिंतन। ओके। तो और दूसरा है मनसा वेग। मन में हमेशा वेग चलता रहता है, तो हम
क्या है कि हम थॉट्स हमेशा चलते ही रहते हैं, थॉट्स आने बंद नहीं होंगे। थॉट्स को रैशनलाइज या शास्त्रोचित करना है, भगवान को रखना है आगे, तो थॉट्स भगवान के हिसाब से आएंगे। भगवान जो चाहते हैं हमसे वैसे थॉट्स हमें मिलेंगे। अभी माया जो चाहती है या हम जो चाहते हैं, पहले हमने संसार में जो चाहा है, माया हमें बार बार वैसे थॉट्स ला के देती है, हमारे मन में हमेशा चलता रहता है, या हमारे आसक्तियों के हिसाब से हमारे थॉट्स आते रहते हैं, या परिस्थिति के हिसाब से आते रहते हैं। जो जो हम जानते हैं समझते हैं, जैसी हमें श्रद्धा है वैसे वैसे हमारे थॉट्स आते रहते हैं। लेकिन ये सब रिफाइनमेंट की जरूरत है। थॉट्स भी अगर सही नहीं है तो फिर वर्ड्स सही नहीं होंगे, फिर एक्शन गड़बड़ होगा, अंदर अंदर हमारे को असंतुष्टि होगी। उसके अंदर भी फिर क्रोध वेग है, जीवा वेग है, अलग अलग प्रकार के चीजों को चखने की हमारे को वेग है। तो वो कृष्ण प्रसाद लेने से और सुंदर सुंदर प्रसाद भगवान को अर्पित करके उसको स्वीकार करने से हमारा जीवा वेग और शांत हो जाता है। उपस्थ वेग, तो ये सारे वेग हैं जो हमें सही प्रकार से भगवान की वस्तुएं या भगवान के व्यक्ति या भगवान की आत्माएं, इनसे इंटरेक्ट करने नहीं देंगे। और आनंद प्राप्त करने का तरीका है कि प्रॉपर इंटरेक्शन। अगर इम्प्रॉपर इंटरेक्शन है तो सारा आनंद वहीं खराब हो जाता है, सारे मजा हम जो लेना चाहते हैं वहीं पे मिस मैच हो जाता है। हमने किसी से बातचीत किया, उसको ऐसा कुछ बोल दिया, उसको अच्छा नहीं लगा, संबंध खराब हो जाएंगे। फिर जिस संबंध से हमें आनंद आता था वही खराब हो गया, तो क्या हम आगे इंटरेक्ट कर पाएंगे? हमारी भावना ठीक नहीं है अंदर, इंटरेक्ट करने समय हम उनसे कुछ लेना चाहते हैं, सेवा करने के बजाय हम कुछ उनसे लेना चाहते हैं। तो हमारा संबंध बनाने का जो बेसिस है वहीं पे प्रॉब्लम आ गया, हमारी समझ कुछ प्रॉब्लम में आ गई। तो ऐसे ऐसे ये सारे वेग बन जाते हैं जब हमारा इम्प्रॉपर अंदर होता है, तो ये अलग अलग वेगों के रूप में बाहर दिखाई देते हैं। तो अंदर में सारे कॉन्सेप्शंस हमें ठीक करने होते हैं, और ये वेगों, जब हमारे कॉन्सेप्शंस ठीक होते हैं, भगवान से संबंध जुड़ जाता है, हमें भगवान, हमारे हृदय में भगवान धीरे धीरे आगे और बढ़ने लगते हैं। तो हमारे को ये वेग सब शांत हो जाते हैं, होने लगते हैं, शांति हो जाती है। क्रोध आना स्थिर हो जाएगा, बोलने की बहुत है ये, वो भी स्थिर हो जाएगा, सारे वेग स्थिर हो जाते हैं। ऐसा तो ये 6 वेग हैं जिनसे हमें हमें सर्व शांति चाहिए। 6 दोष हैं, हम इंटरेक्ट करते हैं तो अत्याहार, कुछ ज्यादा ही कर देते हैं, जितना हमारे इंद्रियों को यूज करना है उससे ज्यादा हम उसको एक्सप्लॉइट करने, उससे आनंद लेने का प्रयास करते हैं, इससे इम्बैलेंस आता है। अत्याहार, ज्यादा ही हम या तो अपने आंखों को ज्यादा यूज करने लगे, या खाने के लिए ज्यादा, या फिर इकट्ठा ज्यादा करने लगते हैं, और चाहिए और चाहिए। तो इससे क्या होता है, अब वो उसी के पीछे दिमाग चलता रहेगा, बैलेंस नहीं होगा, जितना जरूरी है उतना लेना ही है। तो इसको युक्त आहार कहा गया है, युक्त विहार, प्रयास। भौतिक चीजों को लेने के पीछे हम जितना जरूरी है उससे ज्यादा ही उसमें लग जाते हैं, फिर हमारा दिमाग उसी में चलेगा, सारा टाइम उसी में चला जाएगा। और प्रजल्प, बोलना बोलना बोलना, भौतिक चीजें, तो हमारा भौतिक परिवेश और बढ़ जाता है अंदर, हमारी आध्यात्मिक शक्ति कम हो जाती है। नियम आग्रह, कितना नियम करना है, बैलेंस, या तो नियम ज्यादा ही कर दें या तो कम ही कर दें। तो ये सब जगह बताया गया है कि इस सब चीजों का बैलेंस चाहिए हमें। हमें एनर्जी दिया है भगवान ने, बोलने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, देखने की शक्ति, सोचने की शक्ति। इन सब का अगर इम्प्रॉपर यूज हो रहा है, यही प्रॉब्लम है हमारा, ये हमें सीखना है। ये इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, और कैसे प्रॉपर यूज होगा, क्या चाहते हैं भगवान, उससे अलाइनमेंट से होता है। जो चाहते हैं वही कॉन्शियसनेस अगर अलाइंड हो गई तो सब कुछ फिर ऑटोमेटिकली फ्लो करेगा प्रॉपरली। जैसे बच्चे होते हैं, माता पिता के संपर्क में रहते हैं, उनसे बड़े आश्रय का अनुभव करते हैं, तो क्या माता पिता चाहते हैं, स्वाभाविक रूप से बच्चे वैसा करते हैं। उनको अलग अलग से इंस्ट्रक्शन भी देते हैं माता पिता, और वो इंस्ट्रक्शन याद भी रखते हैं, उसी हिसाब से चलते भी हैं। तो ये इंस्ट्रक्शंस वो समझते हैं कि माता पिता सही दे रहे हैं हमें, और इससे ये हमारे लिए सबसे अच्छा है।
तो ऐसे ही भगवान ने, भगवान के भक्त आचार्य, वो हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं भगवान की ओर से, ये सब चीजें हमारे लिए आवश्यक हैं, ये सब चीजें हमें भगवान की भक्ति करते हुए ये सब चीजों पे ध्यान देना है। कुछ अपना मनन चिंतन भी करना है, कुछ कंट्रोल भी करना है, लेकिन असली में कंट्रोल और थोड़ा इसमें सही सही जगह ये कैसे पहुंचेगा, भगवान की भक्ति करते करते ये सब चीजें अपने आप सही जगह पहुंचती है। लेकिन हमें आउट ऑफ कंट्रोल भी इसको छोड़ना नहीं है, इसको संभालते हुए आगे बढ़ना है। जनसंग, हम नॉन डिवोटी एसोसिएशन से हमें बचना होता है, मतलब कि असत संग से हमें बचना है। जो असत संग से भरे पड़े हैं उनसे बच के हमें अपना कार्य करना होता है। सत्संग, जो सत बातें कर रहे हैं, सत व्यवहार कर रहे हैं, उनके साथ संगति हमें रखनी चाहिए। अंदर में हमें ऐसी वातावरण अपने मन में भी जनरेट करके रखना है, और मन को अपने श्रद्धा को बचाना भी है। ये नहीं कि हम भक्ति कुछ किए और फिर उसको उल्टे तरीके के लोगों से मिलके और हमने उसको गवा दिया, तो फिर माया हमें ज्यादा ज्यादा पकड़ेगी। तो ये सब करने से क्या होता है, भक्ति कम हो जाती है, हमारी नष्ट होती है, हमारी श्रद्धा भगवान के प्रति जो बढ़ी है वो घटती है। जो ये दोष है, दोषपूर्ण व्यवहार या विचार है हमारे अंदर, तो ये समस्या होती है, इससे भक्ति घटती है हमारी, और संसार में प्रवृत्ति बढ़ जाती है, फिर हमें दुख आएगा। भक्ति करते हैं तो हमें थोड़ा फायदा लगता है, शांति मन में प्राप्त होती है, आनंद आता है, और फिर हम संसार की ओर फिर ज्यादा बढ़ते हैं, तो ये चलता रहता है साधक के जीवन में, जब तक के लिए वो कन्विंस ना हो जाए कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति के अलावा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, इसी में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो आप कहेंगे कि भौतिक चीजें हमें नहीं करना, हर चीज को आध्यात्मिक कर देना है। जो भी कार्य करते हैं हम, यद करोसि यद अस्नासि, जो भी कार्य करते हैं भगवान को अर्पित करते हुए आगे बढ़ना है। और एक समय आएगा कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका इंस्पिरेशन भी डिवोशनल ही होगा, रात में भी डिवोशनल, बीच में भी डिवोशनल, भक्ति कर्म सारे होंगे, कुछ भी करेंगे सब भक्ति कर्म। अंदर में अगर भक्ति भाव के, हमारा भक्ति भाव प्रगाढ़ हो गया है तो। और हमें 6 गुणों को प्राप्त करना है, उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, जैसे जैसे भक्ति के नियमों को बताया गया वैसे वैसे हमें भक्ति में आगे बढ़ना है। संग त्याग, सतो वृत्ति, आचार्यों के हिसाब से वृत्ति, सत्व वृत्ति ऐसे डेवलप करना है। और ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे हमारे पास है, और 24 घंटे में जितना ज्यादा हो सके भक्ति के चीजों को करना। इसलिए नियम बताए गए, सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, मंगल आरती के लिए जाना चाहिए, जप करना चाहिए प्रतिदिन, भक्तों के से श्रवण करना कुछ, और फिर कुछ अध्ययन करना, और फिर अपने कार्य को करते समय भगवान की चेतना को बनाए रखना। हम दिन में कार्य करने जाते हैं अनेक जगह, अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं, तो जो भक्त पूरी तरह से फुल टाइम है वो तो सेवा कर रहे हैं मंदिर में, या जहाँ भी बाहर बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाएंगे, बुक मैराथन है या जो भी अन्य सेवाएं हैं, और बाकी गृहस्थ भक्त हैं तो वो जाते हैं अपने कार्यों को करने के लिए। तो जो सुबह में चेतना हमने बनाया, उस चेतना को दिन भर मेंटेन करना चाहिए, बचा के रखना चाहिए, और भगवान को स्मरण करते हुए अपने कार्यों को करना चाहिए, भगवान को अर्पित करते हुए अपने कार्यों को सभी संपन्न करना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर ने इस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत किया है, अपने कार्यों को करने जाते थे और बड़े ही एफिशिएंट थे, जल्दी से अपने कार्यों को समाप्त कर लेते थे, क्योंकि उनकी बुद्धि बड़ी प्रखर थी, भक्ति करने के कारण स्पष्ट देख सकते थे कि क्या क्या है, भौतिक एनर्जी, भौतिक जो वातावरण है वहाँ क्या हो रहा है, और कौन क्या कर रहा है, किस भावना से किसने क्या किया, बड़े आसानी से पकड़ लेते थे, और किसने क्या अपराध किए हैं उसका निर्णय कर देते थे, एक दिन में 50 केस सॉल्व कर देते थे, बहुत एफिशिएंट, क्योंकि उनकी जो भक्ति है बड़ी प्रखर थी, बड़े ही स्मरण शक्ति, बड़े स्ट्रांग, भगवान से कनेक्शन बहुत स्ट्रांग था, और चीजों को देख पाना, उस प्रकार के चेतना का विकास, जिससे कि स्पष्ट सब भौतिक भौतिक चीजें क्या काम कर रही हैं, आध्यात्मिक चीजें कैसे काम कर रही हैं, सब स्पष्ट दिखाई देता है। अगर हमारी चेतना आध्यात्मिक हो जाए तो ये सब कुछ बड़ा स्पष्ट दिखाई देता है। नहीं तो चेतना मलिन होने से, हमें रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव होने से हम बार बार वही काम करते हैं और असली चीज हम नहीं कर पाते, ऐसा होता है।
जल्दी से हम पकड़ नहीं पाते कि एग्जैक्टली करना क्या है, कितना करना है, कहाँ पे काम करना है। तो हम गलत जगह गलत तरीके से लगे रहते हैं, और दिमाग में भी अनेक तरह की चीज चलते रहते हैं, उसमें भी दिमाग में चलता रहता है, उससे भी हमारा समय बर्बाद होता है, और इस तरह से एनर्जी हमारी खराब होती है। तो इस चेतना को दिन भर एम्प्लॉय करके रखना, किस लिए? ताकि हम जब भक्तों के संग में आएंगे और हमारी चेतना अच्छी होगी, तो जो आदान प्रदान होगा उसमें दिव्यता होगी और आनंद आएगा। शुद्ध भक्तों की संगत करने के लिए एबल हो जाएंगे। जो आदान प्रदान करना चाहते हैं स्पॉन्टेनियस, हम इस भौतिक जगत में हम करते हैं स्पॉन्टेनियस, लेकिन उसमें कर्म ट्रांसफर होते हैं, एक दूसरे से हम भौतिक एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, हमारा एनर्जी खराब हो जाता है, खत्म होता है उसमें, एक्सप्लॉइटेड एक्सप्लॉइटेड फील करते हैं हम, हमें लगता है थक गए हम, कितना करें करते करते। लेकिन जब वही हम एक्सचेंज करते हैं स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ, ददाती प्रतिगृहणाति, लेते हैं देते हैं, सबका एनर्जी बढ़ता है, सबको स्पिरिचुअल एनर्जी मिलती है, पोषण मिलता है, आनंद प्राप्त करते हैं, भगवान एक्सचेंज होते हैं उसमें। तो जब ये समस्याओं से हम निवारण करते हैं अपने आप को, और सही ढंग से गुण विकसित कर रहे हैं, तो हम इस प्रकार की एक्सचेंज कर सकते हैं, जिसमें आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। उस प्रकार का संकीर्तन तब संभव है, और हृदय की मलिनता चल जा चुकी है, और क्या हो रहा है? हाँ, और आनंद प्राप्त हो रहा है, एक्सचेंज कर रहे हैं भगवान को भगवान से, और आनंद प्राप्त कर रहे हैं। और अगर मान लीजिए हम शुद्ध अवस्था में नहीं भी हैं, तो भी प्रोसेस यही है, भक्ति के कार्यों को करेंगे, शुद्ध भक्तों की संगति करेंगे, भगवान का प्रेजेंस हमारे अंदर बढ़ेगा, और हम हमारा हमारा विजन स्पिरिचुअलाइज होगा, और फिर हमें जो एक्सचेंज करेंगे हम उसमें अ, ये ध्यान में रखते हुए करेंगे कि इसमें भगवान को एक्सचेंज करेंगे, भगवान का एक्सचेंज हो, वो हम एक्सचेंज जो करें उसमें हम प्रेजेंट हो, प्रसाद एक्सचेंज करें, गिफ्ट्स ऐसे हों जो भगवान से स्मरण दिलाएं हम। तो ये ददाती प्रतिगृणाती, इस प्रकार से भक्ति का वर्धन करने या भक्ति में एक्सचेंज करने का प्रोसेस बताया गया है। गुह्यम आख्याति, हमारे हृदय बात, भगवान से हम कैसे कैसे भक्ति किया जाए, क्या करने से भक्ति बढ़ती है, क्या करने से भक्ति घटती है, ये आदान प्रदान, हमें ऐसा ऐसा प्रॉब्लम महसूस हो रहा है, इसका कहाँ समाधान है, तो भागवतम की बातें होंगी। और भौतिक जगत में भी गुह्यम करते हैं लोग, उसमें अंदर की बात बताते हैं कि कैसे हम माया में फंसे हैं, और उस आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उसमें आनंद नहीं होता, परेशानी होती है, लेकिन माया के द्वारा कवर हो जाने के कारण लगता है कि उसमें आनंद है। और और आदान प्रदान, खाते हैं खिलाते हैं, क्या खाते हैं? प्रसाद, उसमें भी भगवान को एक्सचेंज करते हैं। तो भगवान हमें हम भी उसी नेचर के हैं, स्पिरिचुअल नेचर के हैं, तो एक्सचेंज भी हमारा स्पिरिचुअल करने से ही हमें आनंद आएगा, हम उसी को खोज भी रहे हैं। भगवान कहीं बताए हैं, एक सोर्स मेरे को क्लैरिटी से नहीं पता, कि भगवान कहाँ मिलते हैं। तो भगवान बोलते हैं, न हम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा, तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्ता। जहाँ मेरे भक्त शुद्ध भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, वहाँ भगवान प्रेजेंट हो जाते हैं। भगवान को प्राप्त करना है, भगवान से लेन देन करना है, जहाँ पे भगवान के बारे में बातें होंगी, भगवान का नाम होगा, गुणगान हो रहा है, और शुद्ध भक्त हों जिनके जो बिल्कुल भगवान को प्रेम करते हैं, कुछ उनके अंदर और दूसरी भावना नहीं है, वहां पे भगवान मिलते हैं। तो ऐसे इस प्रकार इस प्रकार की क्वालिटी हमें, जितना हम वैसे प्रकार के एसोसिएशन में जाते हैं और एसोसिएट राइटली करते हैं, हमें वो चीज प्राप्त होता है। एसोसिएट करने के लिए ऊपर के गुणों की आवश्यकता है, तो हमें अपने वेगों को, ये सब को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, भक्ति करके कंट्रोल होगा। शुद्ध भक्तों की संगति करेंगे हम अप्रोप्रिएटली, रेस्पेक्टफुली, भगवान के नाम का अप्रोप्रिएटली हम संगति करेंगे, जब करेंगे रेस्पेक्टफुली, ध्यान से, वैल्यू देते हुए। तो ये सब उपदेशामृत में ये भी बात बताई गई है कि शुद्ध भक्तों के माध्यम से वो दीक्षा प्राप्त करते हैं, और दीक्षा प्राप्त करके भगवान का नाम लेते हैं, और वैसी भक्ति करने का प्रयास करते हैं जिससे कि वो संतुष्ट हो। ये श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, कैसी भक्ति से हम पूर्णतः संतुष्ट होंगे, हमारा हृदय पूरी तरह से शांत होगा, भगवान आके हमारे हृदय में निवास करेंगे, कैसी भक्ति होती है, उस भक्ति का क्या गुण है? अहेतु की अप्रतिहता, ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी।
अगर हम शांति सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो वैसी भक्ति हमें करनी है जिसमें कि कोई कॉज ना हो, भगवान को बस प्रसन्न करना उसका कॉज। भगवान को चाहते हैं, भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, सभी को प्रेम करना चाहते हैं, सभी की सेवा करना चाहते हैं, और कोई रुकावट ना होता और सतत वैसे चलती रहे, वैसी भक्ति की अभिलाषा है हमें, वैसा एक्सचेंज का अभिलाषा है। सवयं पुंसां को धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकपतिहता हे आत्मा सुप्रसीदति। तो इस प्रकार भगवान के प्रति इस प्रकार का रिलेशनशिप हम सकते हैं। और इसका प्रोसेस भी दिया गया है कि हम प्रतिदिन सुने, श्रृण्वतां कृष्ण मुनि श्रवण कीर्तना, सुने भगवान, कानों से भगवान को देखा जाता है, देख सकते हैं, कानों से ही श्रद्धा मिलती है। कोई चीज कहते हैं हम किस प्रकार, जैसा उसके बारे में सुने उसी प्रकार से देखते हैं, जिस प्रकार का एक्सपीरियंस हम दूसरों से लिया है, या तो वो हम पाते हैं या हम कुछ एक्सपीरियंस लेते हैं, कुछ वाइब्रेशंस हम लिए हैं, तो श्रवण से ही दर्शन होता है। बताओ सो कथा कृष्ण, जब कृष्ण के बारे में सुनते हैं तो फिर हमारे कृष्ण हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं और सब प्रकार के जो हमारे दोष हैं उसको नष्ट कर देते हैं। और इस प्रकार से धीरे धीरे करके हम उस भक्ति को प्राप्त करते हैं, और उस प्रकार के सती को लेने के लिए सरल करने के लिए हमारे को शक्ति आती है, और हम उस संकीर्तन में लेते हैं जहाँ आंधी आनंद प्राप्त हो, वैसे भक्तों के साथ आनंद प्राप्त हो जो उस प्रकार से संकीर्तन करते हैं। चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से संकीर्तन करते थे अपने शुद्ध पार्षदों के साथ, अपने पार्षदों के साथ। कुछ समय नाइट कीर्तन चलता था, उसमें अन्य सारे लोग नहीं इन्वाइटेड थे, उसमें सिर्फ आनंद लेने का प्रोसेस था, सिर्फ आनंद लेना है चैतन्य महाप्रभु को। और वो अपने अंतरंग पार्षदों के साथ ही मायापुर में 1 साल तक ये लीला चली। तो उस प्रकार का आनंद में हम एक्सक्यूज मी, मैं थोड़ा हो गया था, तो ऑलमोस्ट एंड मैं ये बोलना चाह रहा था कि हम उसी प्रकार है और हम उस प्रकार की संगति हमें लेनी है, और संकीर्तन, उस संकीर्तन में हम भाग लेना चाहते हैं चैतन्य महाप्रभु के, उसका वो हमें अनुदान दे रहे हैं या हमें चांस दे रहे हैं। और हम जब इस प्रोसेस में जाएंगे करते हैं तो हमें आनंद ही आनंद प्राप्त होगा जिसकी हमें तलाश है। तो और ये सतत हमें करना है प्रतिदिन, जैसे कि हमें दिया गया है उस तरह से हमें करना है। हाँ, प्रतिदिन हरि नाम जप करना है प्रतिदिन और विशेष अवसर जब आते हैं तो अन्य भक्तों की संगति से हमारी भक्ति वृद्धि होगी, वहां पे भी जाना है और संगति करनी है और तैयार करना है अपने आप को। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार का प्रोसेस दिया है। भक्त लोग जगन्नाथपुरी के रथ यात्रा में आते थे और 4 महीने चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते थे, फिर अपने अपने घर जाके फिर अपने अपना साधना भक्ति ये सब करते होते थे, और फिर वापिस आते थे, फिर आनंद लेते थे। और घर में भी जो प्रोसेस बताया है जब करना है वो सब करते थे, फिर वापिस आते थे। तो इस प्रकार का प्रोसेस किया गया है, तो इससे हमारी भक्ति बढ़ती जाएगी और हम आनंद को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई प्रश्न है या कुछ कहना है तो आप प्लीज फील फ्री टू स्पीक, ask questions and express. You can comment also. हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, उपदेशामृत के माध्यम से आपने बताया कैसे हमें 6 वेगों को त्यागना है, और कैसे हमें वो उन 6 चीज़ों को छोड़ना है, प्रत्याहार, प्रयास इत्यादि, और कैसे हमें 6 चीज़ों को अपनाना है, उत्साह, निश्चय, धैर्य, और फाइनली आपने बताया कि भक्तों के साथ हमारा आदान प्रदान कैसा होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को करने से अम, हमें
कैसे परम आनंद की प्राप्ति होगी। सो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। और इससे पहले कि हम भक्तों के क्वेश्चन आंसर्स लें, मैं 30 सेकेंड्स लूँगा प्रभु जी, जस्ट टू मेक सम अनाउंसमेंट्स हमारे अपकमिंग प्रोग्राम्स जो हमारे सेंटर में होते हैं। देन वी कैन टेक questions from the devotees. So just quickly share my screen. So this coming Friday we have a special program. It's the Gita Jayanti and also the Mokshada Ekadashi. So please join us 6:30 p.m. onwards. And the coming Sunday we don't have the Sunday feast program at the center because the center is not available, but we have a full-blown program at Gopal Govind Prabhuji's house. So yeah, please join us for that program. We'll have His Grace Kritu Prabhuji speaking. Every Friday we have Bhakti Vriksha programs from 7:30 to 9:30 p.m. in multiple areas. So please get in touch with Ram Tulsi Prabhu, Ramchandra Prabhu. Every afternoon from 12 p.m. to 12:15 p.m. from Monday to Friday we have Bhagavad Gita reading, which is led by Gopal Govind Prabhu, Jayadrupadi Mataji. So yes, please try to join whenever you can. It's just 15 minutes where we'll just read few verses from the Bhagavad Gita in order. And then from 6 a.m. to 8 a.m. we have our daily morning japa. So please tune in whenever you can. So that's all the announcements that I had. And yeah, if the devotees have any questions, comments, feedback, please feel free to raise your hands, unmute yourself, or please type in the question in the chat. I think we have one question, Prabhuji. Please share with us how you, as a brahmachari and temple vice president, keep yourself motivated. आप कैसे अपने आप को मोटिवेट रखते हैं पूरे टाइम? तो कैसे मोटिवेशन रहता है? तो कुछ हमारे पास कुछ गोल भी है, और गोल अगर सामने दिखाई दे रहा है मोटिवेशन स्ट्रांग रहेगा, और गोल नहीं है तो फिर चलता जाएगा, ऐसा होता है। तो हम वैसे भक्तों के साथ रहें जो जो उस प्रकार के गोल के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, तो हमें फिर मोटिवेशन मिलता है। और शास्त्रों के साथ वैसे हम कनेक्शन बना के रखें तो हमें मोटिवेशन मिलता है, स्ट्रांग रहते हैं। तो वैसा एसोसिएशन हम चूज करें जो कि मोटिवेटेड है, स्पिरिचुअली मोटिवेटेड, मतलब भौतिक मोटिवेशन भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे स्पिरिचुअल मोटिवेशन के लिए कर रहे हैं। राइट मोटिवेशन चाहिए हमें, तो राइट गोल वाले जो लोग हैं, डिवोटीज हैं, वैसे भक्तों की संगति, उनसे सुनना, श्रवण करना, तो हमें भी वो इस प्रकार की शक्ति का अनुभव होता है, मोटिवेशन मिलता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना भगवान की ओर से, तो हम अगर मोटिवेशन कम भी हो जाए, लेकिन बाकी भक्त तो जब आएंगे, मान लीजिए क्लास हमें करना है, क्लास देना है, या फिर हम सभी भक्तों की सेवा कर रहे हैं, कुछ उनको एंगेज भी कर रहे हैं, तो वो आएंगे तो हमें तो कम से कम सामने तो मोटिवेटेड रहना ही पड़ेगा। नहीं तो कुछ कार्य आगे हम नहीं कर सकते। तो अपने आप को ऐसे संगति में रखना जहां हमें रहना पड़े मोटिवेटेड, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेना हेल्पफुल है। हाँ, ये बोझ भी हो जा सकता है अगर राइट वे में नहीं लिया गया, जरूरत से ज्यादा ले लिया गया, जितनी कैपेसिटी हमारी उससे ज्यादा हम करने का प्रयास कर रहे हैं आउट ऑफ डिफरेंट मोटिवेशन। लेकिन राइट वे में, अगर बैलेंस्ड वे में बैलेंस रखा जाए, बैलेंस करके लिया जाए रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और बैलेंस वे में डेलीगेट किया जाए, डिवाइड किया जाए, सबको दिया जाए,
तो वो भी मोटिवेटेड रहेंगे, उनके लाइफ में भी बैलेंस है और हमारी लाइफ में भी बैलेंस है, तो हमारे इंटरेक्शंस भी बैलेंस्ड रहेंगे। सबके बैलेंस का हम ध्यान रखते हैं और अपने बैलेंस का भी ध्यान रखते हैं, तो उनके बैलेंस से हमें हेल्प मिलेगा, हमारे बैलेंस से उन्हें हेल्प मिलेगा। तो इस प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेना बहुत हेल्पफुल है। कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट में हम भगवान की ओर से, भगवान के लिए उनके प्रचार का कुछ हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं उनकी सेवाओं का, ड्यूटी वर्शिप तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण भी हम मोटिवेटेड रहेंगे। हमें करना ही होगा, टाइम है उसका, उस समय पे होना है, तो हमें समय पे चलना पड़ेगा। तो इस समय से अपने आप को बांध के रखना है, समय का प्रभाव भी हमें समझना है कि हमें सही समय पे सही चीज भी करनी है। सही समय पे हमने माया गलत चीज को चूज कर लिया, माया की चीजों को चूज कर लिया, तो हमारा मोटिवेशन डाउन होगा। अगर हम राइट राइट चूज करते रहे, अपने आप को घेरे में बांध के रखे, भक्ति के घेरे में अपने आप को रखे, फेंसिंग है अपने डिवोशन का, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, कुछ अपॉर्चुनिटी में भाग लेके ऐसा, और अपने आप को रखें ऐसे लोगों के बीच में जो मोटिवेटेड हों, या जहाँ हमें मोटिवेशन रखना ही पड़ेगा, मोटिवेटेड वे में कार्य करना ही पड़ेगा, भक्ति देनी है हमें जहाँ, वहाँ पे उत्साह रखना ही होगा। तो इस तरह से अपने आप को वैसी परिस्थिति में रखना। कितने बार हो सकता है कि हम डाउन हो जाए, लेकिन वैसी परिस्थिति में हमेशा किसी न किसी प्रकार से अपने आप को रखना, चूज करना, इस प्रकार का चॉइस बना के रखना अपनी लाइफ में। हमें 24 घंटे हैं, क्या हम करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, सब चीज को अप्रोप्रिएटली चूज करते जाना। जैसे अगर अकेले हैं हम, तो हमें कीर्तन वगैरह का एसोसिएशन लेते रहना चाहिए, वैसे कीर्तन जिससे हमें भगवान से कनेक्ट होने का और ज्यादा मोटिवेशन मिले। बहुत सारे कीर्तन यूट्यूब पे, अकेले हम लोग कभी हैं तो रीडिंग करें वैसे, वैसा अगर बाकी कार्य है तो कार्य में भक्ति का समावेश करते हुए चले, भक्तों का हेल्प लेते हुए सारे कार्यों को करें, दिलाएंगे हुए भक्ति करने के। तो इस प्रकार से हमें मूवमेंट में अपने गोल को ध्यान में रखते हुए, और मूवमेंट का भी गोल ध्यान में रखते हुए, और बाकी लोग के भी गोल को ध्यान में रखते हुए अपने आप को वेट करना चाहिए। लेक्चर सुनने, पढ़ना चाहिए, एक्सचेंज करना चाहिए। तो इस तरह से बैलेंस्ड अगर हम सब चीज रखेंगे, तो हमें मोटिवेशन की कमी नहीं आएगी, मोटिवेशन से बढ़ता जाएगा। भगवान हमेशा किसी न किसी माध्यम में याद रहेगा, याद करवाएंगे भगवान। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। यस, सही चॉइसेस हमें करनी है और गोल को ध्यान में रखते हुए चलना है, तो बस हमेशा मोटिवेटेड फील करेंगे। थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई प्रश्न, एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स? Looks like we lost Prabhuji. Okay. हरे कृष्णा प्रभुजी। सो एक क्वेश्चन है, उससे पहले हम प्रियंका माता जी हैं, आज उनका बर्थडे है प्रभुजी, उनका जन्मदिन है, तो शी इज सीकिंग ब्लेसिंग्स फ्रॉम ऑल ऑफ अस, एंड वी कैन ऑल अनम्यूट, एंड प्रभु जी आप भी प्रियंका माता जी को ब्लेस कर सकते हैं कि वो भक्ति में आगे बढ़ें, और हरे कृष्ण, हैप्पी कृष्ण कॉन्शियस बर्थडे माता जी आपको, और खूब 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 ढेर सारी बधाइयाँ हो, भगवान आपको भक्ति दे, आनंद हो आपके जीवन में, सबकी कृपा प्राप्त हो आपको। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी।
Hare Krishna. Thank you so much for all your blessings. Shukriya. Thank you so much. Thank you, Madhavi. Thank you, Mataji, for joining. And yes, we wish you a very happy Krishna conscious birthday. And yes. So प्रभु जी, एक क्वेश्चन है चैट में. I want to practice, but my spouse is not supportive. What to do? Spouse is not in KC. So इस पे कुछ शेयर करना चाहेंगे प्रभु जी आप? यस, तो जब हम अच्छा, लोगों को एक्सपेक्टेशन होता है जब हम भक्ति में आते हैं तो पहले से ज्यादा हम अच्छा उनसे डील करें. तो ये अगर हम अच्छा डील कर सकते हैं तो दे विल फील मोटिवेटेड कि ये चीज ऐड करने से लाइफ में और बेटर लाइफ हमारी हो रही है. तो भक्ति करने से अगर हमारे रिलेशनशिप्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं या उसमें और ज्यादा मीनिंग ऐड नहीं हो रहा है और मीनिंग घट रहा है, हम ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे लगता है कि हम भगवान के साथ बस चले जाएंगे और इनको छोड़ देंगे, या कुछ ऐसे है प्रैक्टिसेस उनको इन्वॉल्व हम नहीं कर रहे, तो उनको लेफ्ट आउट महसूस होता है. तो वो फिर सपोर्ट नहीं कर पाते. उनको सपोर्ट करने के लिए हम मौका नहीं दे रहे हैं कि वो सपोर्ट कर पाए. उनसे हम कुछ एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, कुछ ले नहीं रहे हैं, उनका हेल्प नहीं ले रहे. तो अगर घर में हम हैं तो घर में एक दूसरे का तो हेल्प लेते ही हैं कुछ भी. जैसे कि अगर बच्चे पढ़ाई करते हैं तो पेरेंट्स से थोड़े बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी पढ़ाई करें. बच्चे अपनी पढ़ाई करते हैं, पेरेंट्स अपना काम करते हैं. लेकिन बच्चे जरूर मदद लेना चाहते हैं पेरेंट्स की पढ़ाई करने में, और पेरेंट्स भी पढ़ाई करने में बच्चों की मदद करना चाहते हैं. लेकिन जरूरी नहीं कि पेरेंट्स बच्चों की पढ़ाई करके फिर उनको पढ़ाने लगे. वैसा भी कर सकते हैं और मदद करने के लिए, ये भी संभावना है. लेकिन मान लेते हैं कि हम भक्ति करते हैं तो हम उनको भक्ति देना और उनसे भक्ति में मदद लेना, ये कार्य हम नहीं कर पाते अगर हम सोचते हैं कि वो शायद भक्ति को समझते ही नहीं. ऐसा नहीं है. सबसे पहले हमें समझना चाहिए हर व्यक्ति के पास भक्ति करने की एबिलिटी भगवान ने हृदय के अंदर दी है. श्रद्धा है हर व्यक्ति के पास. उस श्रद्धा को जगाने के लिए एक्सचेंज कुछ करना है. अगर हम उनसे मीनिंगफुल एक्सचेंज करें तो डेफिनेटली वो सपोर्ट करेंगे. हमें लेना भी मीनिंगफुल आना चाहिए. जरूरी नहीं कि हमें देना ही है उनको. देने से ही हम उनको मोटिवेट कर पाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है. उनसे हेल्प लेने से भी वो मोटिवेटेड फील करते हैं. जैसे कि हमारे मंदिर बनते हैं, बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं इस्कॉन के, सब जगह तो पैसे ही ले रहे हैं ना हम लोगों से. हम उनको थोड़ा सा प्रसाद देते हैं और पैसे तो हम ढेर सारा लेते हैं, लेकिन वो काफी संतुष्टि महसूस करते हैं कि हमने हमारे पास कुछ ऐसा है जिससे कि हम सहयोग कर सकते हैं, कुछ हेल्प कर सकते हैं, दूसरों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. भले ही वो उतना भक्ति ना करे, लेकिन डेफिनेटली वो लक्ष्मी देना, वैसे अपॉर्चुनिटी पे आना, कुछ अपने श्रम देना या फिर कुछ ऑर्गेनाइज करने में मदद करना, हो सकता है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं हमारे फेस्टिवल्स में. ऐसे भी लोग होते हैं. तो ये डिपेंड करता है हम पे कि हम किस प्रकार से इस भक्ति के प्रोसेस को एक्सटेंड करते हैं हमारे आसपास. ये उनका प्रॉब्लम नहीं है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. वो सपोर्टिव नहीं है, ये उनका प्रॉब्लम नहीं है. हम कैसे उनसे सपोर्ट लेने का एनवायरनमेंट बनाते हैं, ये हमारा प्रॉब्लम है. अगर हम बनाएंगे तो निश्चित रूप से उनका सपोर्ट मिलेगा. कोई भी ऐसा नहीं है इस संसार में जो एक्सचेंज नहीं करना करना चाहता, आनंद नहीं लेना चाहता. उनको वो समझ में नहीं आ रहा कि करना किस प्रकार से है. हम वैसा उनको उनको हम नहीं समझ पा रहे कि उनको देना किस प्रकार से है, या अवसर कैसे देना है भक्ति में पार्टिसिपेट करने का. तो बहुत सारे तरीके हैं. कीर्तन घर में बज सकता है, अच्छा म्यूजिक वाला कीर्तन जो उनको पसंद है उस तरह का कुछ कीर्तन बज सकता है. अच्छा प्रसाद बनाइए जो उनको पसंद है, कुछ उस तरह का टेस्ट वो भगवान को अर्पित करके उनको दीजिए. तो उनको लगेगा कि वाह क्या बात है, भगवान की भक्ति करने से ये अब हम पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, कितना अच्छे हैं भगवान. जब हम ऐसा प्रेजेंटेशन रखते हैं, ऐसा अवसर देते हैं इन्वॉल्व होने के लिए, कौन नहीं चाहेगा कि पार्टिसिपेट करें भक्ति में. कौन नहीं चाहेगा. तो हम राइटली प्रेजेंट करें भक्ति को, अवसर दें लोगों को, और निश्चित रूप से हमें सहयोग मिलेगा. ना मिले तो हमें हमसे वो अपेक्षा करते हैं कि अगर हम सहयोग ना भी करें तो भी हम उनसे अच्छा व्यवहार करें. क्यों? क्योंकि हम भगवान के भक्त हैं.
हम सबके प्रति समभाव रखना चाहिए हमें। कोई हमारे को फेवर करे तो भी हम उसके प्रति फेवरेबल रहते हैं, ना फेवर करे तो भी हम उनके प्रति फेवरेबल रहते हैं, अच्छे से फिर भी हम उनसे बातचीत करना, व्यवहार करना करते हैं, उनसे अच्छा संबंध बनाते हैं, उनको फिर भी देने का, सेवा करने की भावना हम रखते हैं। सेवा लेने के बजाय अगर हम सेवा देने की भावना रखें तो कौन नहीं चाहेगा हमसे संबंध बनाना। तो इस प्रकार से अगर हम बस भक्ति को प्रस्तुत करें, भगवान को प्रस्तुत करें, तो सपोर्ट ना मिले, भगवान जरूर उनके हृदय को परिवर्तित करेंगे और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा जरूर देंगे। अगर नहीं भी है तो भी देंगे, और है तो तुरंत जागृत हो जाएगा और जुड़ जाएंगे, ऐसा निश्चित होगा। तो बहुत आसान है। आपके पास रिलेशनशिप है अपने स्पाउस से, तो रिलेशनशिप को उपयोग कीजिए भगवान की भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, उनके लाइफ में और अपने लाइफ में, दोनों में उसका उपयोग करना है हमें। रिलेशनशिप को भी स्पिरिचुअलाइज करना है, तो उसका हेल्प, उनका हेल्प ले सकते हैं हम अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए और उनकी भक्ति बढ़ाने के यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस आंसर। एक श्रीला प्रभुपाद जी का एक कोट मुझे याद आया कि बताते हैं कि डिवोटी इज ऑलवेज लिबरल एंड काइंड टू एवरीवन, ही इज अ परफेक्ट जेंटलमैन इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। सो हमें ये लिए। हमें आपने बहुत अच्छे से समझाया कि हमें सेवा देनी है, लेनी नहीं है, और यस, उन्हें भी ऐसा लगना चाहिए कि ये भगवान की भक्ति कर रहा है तो ये इसका मेरे प्रति अब व्यवहार और अच्छा हो गया है, तो कितने अच्छे हैं यस। भगवान। तो इस तरह का जब उनके अंदर वो फीलिंग आएगी तब वो अपने आप ट्रांसफॉर्म होंगे। सो यस, थैंक यू सो मच। एक क्वेश्चन है प्रभु जी, दैट माय चाइल्ड इज टेकिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस सीरियसली। आई एम हैप्पी बट आई हैव द फियर दैट ही विल बिकम टू सीरियस and fall behind in material life. I know my thinking is wrong, but how do I change my attitude? वो ज्यादा ही भक्ति ना करने लग जाए, तो उनको समझाना है उनकी लाइफ के लिए सुटेबल नहीं है। हाँ देखिए, बच्चों को अभी सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। सिर्फ भक्ति सीख जाने से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उनकी लाइफ में अभी बहुत चीज़ों के आना है, बहुत कुछ सीखना होता है। किस प्रकार से सब लोग से इंटरेक्ट करना है, डील करना है, तरह तरह की चीज़ें हैं संसार में, भक्ति भी है उसमें। तो भक्ति के माध्यम से और आगे बढ़ना है, लेकिन बाकी चीज़ों का एक्सपोजर भी बहुत जरूरी है। एक बार ऐसा ही हुआ, क्या हुआ कि एक भक्त थे, उन्होंने सोचा कि हमारे बच्चे को हम बस स्पिरिचुअल एक्सपोजर देंगे, कोई मटेरियल एक्सपोजर नहीं देंगे, तो ये भगवान को प्राप्त कर लेंगे और इनका लाइफ बेस्ट हो जाएगा, यही गोल है लाइफ का। ऐसा ऋषि श्रृंगी की कथा आती है। उनको कोई मटेरियल एक्सपोजर नहीं था इस परिवेश में, लेकिन राजा ने एक समय कुछ स्त्रियों को भेजा उनके पास तो वो उनसे धीरे धीरे करके आकर्षित होने लगे, और राजा चाहते थे कि उनका विवाह हो जाए। राज्य में अकाल था, तो विवाह होने से फिर वो ठीक हो जाता, ऐसा उनको विधि या ऐसा उनको तरीका बताया। तो यद्यपि पिता चाहते थे कि किसी प्रकार से वो संसार के प्रति थोड़े भी आकर्षित ना हो, लेकिन क्योंकि अप्रोप्रिएट एक्सपोजर नहीं था संसार का, वो जज नहीं कर पाए कि इससे हमें बच के और फिर भक्ति में आगे बढ़ना है। तो अगर हम बच्चों को बोले सिर्फ स्पिरिचुअल एक्सपोजर है, बस स्पिरिचुअल ही है चीजें, नहीं नहीं, ये रियलिटी का कुछ पार्ट है। हम स्पिरिचुअल हैं लेकिन हम मटेरियल एग्जिस्टेंस में भी हैं, इस बात को भी हमें समझना है। और हमें मटेरियल चीजों से इंटरेक्ट करना ही होगा, करना ही पड़ता है, और उनको ठीक ठीक से समझना ही पड़ता है कि किस प्रकार से इंटरेक्ट करना चाहिए हमें। और हमारे बच्चे अगर सिर्फ स्पिरिचुअल एक्सपोजर करेंगे हम उनको, या ज़्यादा वो इंटरेस्ट ले रहे हैं स्पिरिचुअल चीज़ों में, तो कुछ समय के बाद उनको मटेरियल चीज़ें भी सामने आएंगी, वो जज नहीं कर पाएंगे इसको कैसे यूटिलाइज करना है। हम नहीं सिखाएंगे तो हम ज़्यादा ही उसको छोड़ देंगे, स्पिरिचुअलिटी के नाम पे स्पिरिचुअल ही बस होना है, तो उसमें मिसजज करेंगे, और फिर ऐसा होगा कि पूरी तरह से वो मटेरियल चीज़ों से अट्रैक्ट होंगे, स्पिरिचुअलिटी भी पूरी तरह से छोड़ दे सकते हैं। बहुत संभावना है इसकी, ऐसा होता है, इस्कॉन में बहुत ऐसा हो रहा है। हम अगर पेरेंट्स हम समझते नहीं कि कैसे बच्चों को हमें संभाल के आगे उनको प्रॉपरली बैलेंस देना है, तो कितने बार ये सब होता है और बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर बिल्कुल भक्ति को छोड़ देते हैं। ऐसा बहुत देखा गया है, बहुत ज्यादा ऐसा देखा गया है।
बहुत 95-99% केसेस में ऐसा देखा गया है कि ऐसा होता है। तो इस प्रकार से भक्ति देना उचित तरीका नहीं है। दोनों चीज का बैलेंस देना ही राइट वे है। अगर स्पिरिचुअली ज्यादा माइंडेड भी हैं अगर बच्चे, तो बहुत अच्छा है, उनको स्पिरिचुअल चीजों से इंटरेक्ट ज्यादा हम कराएंगे, और मटेरियल चीजों को स्पिरिचुअल वे में कैसे इंटरेक्ट करना है वो सिखाएंगे। कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बोलेंगे कि मटेरियल से कुछ लेना ही देना नहीं है, तो ये रियलिटी का पार्ट नहीं है, ये कम है रियलिटी से। इससे डिफिकल्टी आएगी, इससे हेल्प नहीं होगा बच्चों को हमारे। तो हम इस तरह से अप्रोप्रिएट बैलेंस करें अपने लाइफ में भी, राइट वे में इंटरेक्ट करें, मटेरियल चीज़ों का राइट बैलेंस रखें, ऐसे ही भगवान ने बताया, युक्त आहार युक्त विहार, ठीक प्रकार से खाना पीना, ठीक प्रकार से एंटरटेनमेंट, ठीक प्रकार से लेन देन, इस संसार से सब कुछ, ठीक प्रकार से सोना, ये भी बोला है। ऐसा नहीं कि सोना ही नहीं है, हमें ठीक से सोना। तो हम सत्वगुण को प्राप्त करेंगे और फिर उससे आगे में हम बढ़ पाएंगे अगर ये करेंगे तो ऐसे हमें इस प्रकार से ट्रेनिंग लेनी भी है भक्ति में, और अपने बच्चों को या और भी जो भी भक्त हमारे आसपास है उनको भी इसी प्रकार से बैलेंस्ड वे में ट्रेनिंग देनी है। इम्बैलेंस नहीं करना है लाइफ को, जैसी जिसकी अवस्था है उस हिसाब से ही उनको आगे बढ़ाना है। और एब्रप्टली कहीं का भी कहीं लेके जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उससे डिस्टरबेंस होता है उनके लाइफ में, सोसाइटी में, फैमिली में, सब जगह डिस्टरबेंस होता है। तो हमें इससे बचाना चाहिए अपने आप को भी, और बच्चों को भी या भक्तों को भी संभालते हुए, हेल्प करते हुए, बैलेंस करते हुए आगे बढ़ाना चाहिए। हरे कृष्ण। Thank you very much, Prabhuji. Yes. बहुत ज़रूरी है बैलेंस करना, और जैसे कि आपने बताया कि एब्रप्टली कुछ नहीं हमें करना है, otherwise it can be a cause of disturbance. Yes. Thank you. Any other questions or comments for Prabhuji? Prabhuji, thank you so much. आपने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया सब चीज़, और क्वेश्चंस के भी आपने बहुत अच्छे से डिटेल्ड आंसर्स दिए। So we really appreciate you coming today for our Wednesday Sangha and enlightening us. So we hope that आप वापस दोबारा ज्वाइन करेंगे हमें। Yeah, thank you very much for giving the opportunity to discuss these topics. भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे प्रश्न पूछने के लिए और ध्यान से श्रवण करने के लिए। इससे मोटिवेशन मुझे मिल रहा है ऐसे संग में आने से। क्वेश्चन भी पूछा। यस सर, वी फील एनलाइवेंड। थैंक यू वेरी मच। एंड Thank you. स्पेशली Thank you very much, Prabhuji, and I request everyone to unmute and chant 3 loud Hari Bols for Prabhuji. Hari Bol. 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 Hare Krishna. Especially I'm thankful to His Grace Ramchandra Prabhu for allowing me, giving this opportunity to serve in some way. So we hope, Prabhuji, we can visit the Noida temple sometime. Yeah, very what much. is the visit? Very much, anytime. Please let me know. We have a good guest house. We can have you there. serve in some ways. And we have Vrindavan also very near. In 2 hours we can reach from Noida. So, Yes, Prabhuji. Govindas too. Ramchandra Prabhu is down with COVID, but still he is giving so much attention here. Thank you very much, Prabhu. Thank you very much again, Prabhuji, and thank you to all the devotees for joining. And, have a wonderful rest of your Krishna. Have a wonderful rest of Krishna conscious week. So thank you all. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much. Srila Prabhupada. Ki jai. Jai. Jai, 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 jai.